Hello everyone, welcome to EduTap. Today I have with me another NABARD Grade A officer, Mr. Bikas Rai. Congratulations, Mr. Bikas, and welcome to our channel. Thank you, ma'am. Thanks a lot. So guys, today you please be ready for the session of strategy as well as motivation. Full dose of motivation along with the right strategy is going to be shared by Mr. Bikas Rai. So give us your introduction, please. Ma'am, I have done my graduation from AIT Pune, and uske baad I have worked for a year as a training research scientist in Mu Sigma Private Limited in Bangalore. Ma'am, and I have been recommended twice in Indian Army, or I have given mains of PCS and UPSC also. And ma'am, this was my second attempt in NABARD, and I have been selected this in the second attempt. So this is a brief introduction about me. And my father is in Army, so I have moved all over India, a majority of part of India, and not majority, but many cities. And I'm also from a rural background also, so I have done my education till 9th class in rural setting. बहुत congratulations to you and your family. Thank you, ma'am. Thank So you. how is the feeling now? Are you like कैसी feeling है family में घर में? So many examinations you have given, right? UPSC भी, फिर state exam, then you told me RBI also, this time NABARD. तो कैसा feeling कैसा है? मैम, हकीकत में अगर बात बताऊं तो 21 को रिजल्ट आ गया था, लेकिन अभी तक वो फीलिंग नहीं गई है कि आई एम रिलीव नाउ, एंड अभी तक वो यूफोरिया में चल ही रहा है कि ठीक है नाउ आई, मतलब इतनी मेहनत के बाद, बिकॉज स्ट्रगल वाज वेरी वेरी लॉन्ग फॉर मी, मतलब आज से नहीं चल रहा है, ये 2017 से चल रहा है। और आफ्टर सच अ लॉन्ग स्ट्रगल गेटिंग सच अ जॉब, ठीक है, इट इज वेरी प्रेस्टीज, मतलब आई कांट एक्सप्लेन द वर्ड्स। बस गॉड को ही थैंकफुल हूँ मैं, और मेरी फैमिली भी गॉड को थैंकफुल है कि एट लास्ट आपने करा दिया जो मैं बाबा कहता था कि एक आज नहीं होगा, बोलते ना एक दिन ना होगा, लेकिन एक दिन जरूर हो जाएगा। Wonderful, wonderful. Of course, it is a prestigious job, one of the most important bodies of our country, I would say, one of the most important posts. Itne kam people are there who are sitting in NABARD offices and joining as grade A. तो अभी तो शुरू होना है सफर आगे का, right? अगर शुरू में अच्छी चीज मिल जाए तो अच्छी बात होती है। Wonderful, बहुत अच्छा है। And as you told about your background, I think people have got to know that you have given multiple examinations to competitive exams de rahe the from 2017, as you said. You have worked for 1 year. So that army kida was there. Right? बचपन से ही था वो। So recommend bhi hua, but you told me that due to the medical reasons you could not join there, right? लेकिन उसके बाद में फिर you joined a corporate job and then started preparing for वो जो एक सपना बहुत सारे common Indian घर में देखा जाता है to give the UPSC exam and clear it. तो वो आपने start किया, and I'm really happy to see you here today, क्योंकि देखो ये हमेशा कहते हैं विकास, and I think you are a true example that if you put in बहुत अच्छा effort, true रह के अपने साथ आप मेहनत करते हो तो कहीं तो पहुंच ही जाते हो। तो कहीं नहीं, बहुत अच्छी जगह पहुंचे हो। यस सर, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि मतलब हमारी डेस्टिनेशन क्या है। व्हाट वी कैन डू इज वर्क हार्ड, एम लेके वर्क हार्ड कर सकते हैं, बट जो फाइनल रिजल्ट है वो हमारे हाथ में ही नहीं, वो गॉड ग्रेस है, वो जिसको उसने जहां भेजना है वो पहुंचाएगा। बट अगर आप चलोगे ही नहीं तो आप पहुंचोगे कैसे? तो एक चीज होती है कि कंसिस्टेंट रहना है, मेहनत करते रहना है, ठीक है, वो था पहले से ही। क्यों पहले मैं आपको जैसे ये मेरे एक दोस्त को भी बोला हुआ था कि इस जर्नी में, गवर्नमेंट एग्जाम्स, इस जर्नी में फ्रस्ट्रेशन इज गारंटीड, सिलेक्शन इज नॉट। तो फ्रस्ट्रेशन के लिए अगर आप रेडी हैं तो आइए तैयारी कीजिए, कहीं ना कहीं होगा, बट फ्रस्ट्रेट ना होइए, फ्रस्ट्रेशन इज गारंटीड दो। तो क्या was it difficult to manage at times that ये एग्जाम दिया नहीं हुआ, क्या मतलब सफर मुश्किल था? और although I can see that you have a nature quite positive outlook है आपका, काफी अच्छे से आप jolly nature के भी हैं, लेकिन क्या मुश्किल आता था? at times were difficult to manage, was it? yes obviously मैम, आप इतनी मेहनत डालते हो, इतनी एफर्ट डालते हो, obviously you are waiting for the result। हम अभी उस मतलब उठ के तो वहां पहुंचे नहीं है कि हम उस चीज से निकल गए हो कि यस नहीं हमें मोह माया से ऊपर है, मोह माया में है तभी तो कर रहे हैं। ऑब्वियसली कुछ नहीं अचीव करेंगे, दर्द तो होगा ही, दुख तो होगा ही, बट दुख अलग चीज है, निराशा अलग चीज है। निराश कभी नहीं होता था, निराश इन द सेंस कि यू लूज द होप कि मैं कुछ कर सकता हूँ, वो होने ही नहीं चाहिए। क्योंकि यू कैन, अगर आपको भगवान ने पैदा किया है तो ही हैज इम्बाइब्ड यू विद द सेम क्वालिटीज जो उसने किसी को भी दी है। तो अगर इफ समबडी कैन डू दिस तो व्हाई नॉट मी, मेरे में भी है, बस मैं उसे सही से यूटिलाइज नहीं कर रहा हूँ।
इसको अगर आपने मतलब आइडेंटिफाई कर लिया ना, तो इसे मैं एक बार बार कहता हूँ, विवेकानंद जी का कोट है बहुत अच्छा कि यू कैन नेवर फेल इन लाइफ, आप होते ही नहीं हो फेल। ठीक है, गलती ये है कि आप उसको, आप सेटबैक को फेलियर ले लेते हो। आपने गलत फील्ड चूज कर ली, आप बोलते हो यार मैं तो फेलियर हो गया, अरे आप गलत फील्ड में ही थे, जो आपका एप्टीट्यूड ही नहीं था, आप उधर थे, या तो आप एफर्ट ही नहीं डालते, आप एफर्ट डाल नहीं रहे हो, बस यू आर एमिंग। जैसे कि आप किसी बोलो, भाई वही से किसी से पूछो यार मुझे तो सिर्फ आईएएस ही करना है, पर मैं रहा हूं नहीं, बट मैंने करना है सिर्फ आईएएस, तो कैसे होगा? पीपल आर गिविंग देयर 99%, 100%, 110%, एंड आप कुछ भी नहीं दे रहे हो, एंड देन यू आर एमिंग। तो ये सर दुख तो होता है जब आपका नहीं होता है, क्योंकि यू हैव पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट, बट मैं यही बोलूंगा दुख से निराश नहीं होना है, क्योंकि अगर आप एफर्ट डाल रहे हो तो आज नहीं तो कल होगा, क्योंकि जो मेरी नाबार्ड का सक्सेस है वो एक दिन का सक्सेस नहीं है। मैं ये नहीं क्लेम कर सकता कि मैंने एक एफर्ट में या एक महीने या 2 महीने या एक साल में, इट इज अ क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ लाइक 4-5 ईयर्स। जो इकोनॉमी की नॉलेज, जो एग्रीकल्चर की नॉलेज, जो कई सालों से थी एक्यूमुलेटेड, वो एक कंसर्टेड एफर्ट के साथ इस बार क्लियर हो गई। वेरी वेल सेड। एंड टू टेक अवेज ना जो आपकी बातों से हैं फॉर द व्यूअर्स ऑफ दिस वीडियो, एक तो वो दोज हु आर इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के प्रोसेस में हैं, गिविंग यूपीएससी, गिविंग अदर आरबीआई, सेबी और बहुत एग्जाम्स पीपल आर गिविंग। सो गाइज निराश नहीं होना है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज फॉर यू, क्योंकि वॉट एवर यू आर रीडिंग, वॉट एवर यू आर प्रिपेयरिंग, वो कहीं ना कहीं काम आ ही जाता है। तो आप लोगों के लिए ये है, हमें नहीं पता कहाँ आएगा, ये हमें नहीं पता कहाँ आएगा, लेकिन आएगा जरूर, आएगा जरूर। राइट, तो लगे रहना है, बेसिकली पॉइंट इज मेहनत ट्रू करते रहना है। एज यू सेड दैट आप एफर्ट डालते नहीं हो एंड देन यू वेट कि रिजल्ट अच्छा नहीं आया। तो ये तो था कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स में है। अब देर आर मेनी स्टूडेंट्स, मिस्टर विकास राय, देर आर मेनी स्टूडेंट्स जो एस्पिरेंट्स हैं हमारे यहाँ पे, जो पहली बार ये एग्जाम देने जा रहे हैं, और ना वो भी क्या करता है, आप जैसे टॉपर्स को देख के बड़ा डर जाते हैं कि इनके पास तो इतना एक्सपीरियंस है, इन्होंने तो यूपीएससी लिखा है, मेरा तो हो ही नहीं सकता। वी लिटरली गेट क्वेरीज, हमें ना फोन आते हैं जब हम टॉपर्स की टॉक डालते हैं कि मैम क्या ये जरूरी है कि मैंने यूपीएससी दिया हो, क्या ये जरूरी है दैट आई हैव वर्कड समवेयर, कि मैं तो फ्रेशर हूँ, मेरा एग्जाम हो ही नहीं पाएगा। तो उनके लिए बोलो कुछ, फिर आप बताओ। बिल्कुल मैं ये कभी नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि एक जैसा मैंने, क्योंकि एक सिंगल स्ट्रेटेजी बना के पढ़ाई नहीं की ना, दिक्कत ये है। तो मेरे वेरिड बैकग्राउंड से आपको ये भी एनालिसिस मिल रहा होगा कि मैंने कभी एक पर्टिकुलर चीज पे फुल एफर्ट कभी नहीं मारा, मैं हमेशा दो चीज लेके चलता था, तो इसलिए टाइम लगा, ये भी है एक रीजन है। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में जाना चाह रहे हो, आप सिलेबस, अगर आपने सिलेबस एक बार देख के डिकोड कर लिया, ठीक है, कि सिलेबस क्या है, आपके पास एक ढंग का कोर्स है, अगर कोर्स भी नहीं है, आप यूट्यूब, जैसे कि अब मैं बताता हूँ, जैसे मैंने क्या किया था अपने इसके लिए, जैसे कि फिशेस की कैटेगरीज होती हैं, कोमोड्रोनस, एनोड्रोमस, ऐसे करके, तो मैंने एक पेज पे फिशेस की कैटेगरीज बना ली थी, एक पेज पे एनिमल्स की बना ली थी, जैसे काउ, शीप, तो मैं कह रहा हूँ कि ये सब करने में मुझे जरा जरा 1 महीना लगा। अगर आप साल भर सिर्फ यही चीज करते रहो और इन्हीं को रिवाइज करते रहो, ये सारी पढ़ते रहो, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट मतलब आराम से हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं, क्योंकि आफ्टर गिविंग, आफ्टर सिलेक्शन मुझे समझ में आ रहा है कि इतना हार्ड था नहीं जितना हमने इसे सोच के बना दिया। इट वॉज नॉट हार्ड, वी मेड इट हार्ड, इट वॉज ईजी बट वी चूज इट द हार्ड वे। गलती हम करते हैं, हमें वो जैसे आपने बोला ना कि बच्चे मन में कि मैंने यूपीएससी दिया नहीं, वो एक हार्ड, उनके मन में एक वो नेगेटिव थॉट आ गया, उस नेगेटिव, वो नेगेटिव थॉट उन्हें क्लियर नहीं करने देगा। कारण है उसका, क्योंकि बार बार उनको जैसे ही चाहेंगे प्रिपेयर करने, वो बोलेंगे यार नहीं तू तो नहीं कर, पहले कुछ और कर, क्योंकि तू तो कर फर्स्ट अटेम्प्ट है। तो ये जो नेगेटिव एक थॉट, भी नेगेटिव थॉट जो आता है ना, वो आपका पूरा उसको हिला, अंदर आपको नहीं पता, बट इट डिस्ट्रॉयज द होल सिस्टम। तो कॉन्शियस होके कभी नोटिस करना कि ये थॉट ना है कि यार मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, नहीं हो सकता है, हाईली, अरे इसी बार पता नहीं कितने बंदे फर्स्ट अटेम्प्ट में हुए मैम, 23-24 ईयर्स ऑफ एज में। बिल्कुल तो कैसे उन्होंने आफ्टर लिविंग कॉलेज पहले अटेम्प्ट में। तो वैरायटी ऑफ मतलब वही है कि कब किसकी क्या होता है ना, जर्नी, अब सबकी जर्नी डिफरेंट है, कोई फर्स्ट में जाता है, कोई सेकंड में होता है, कोई अपनी, जैसे मैं 29 का हूँ, तो ये इसके बाद मैं नाबार्ड आखिरी था, लेकिन मैंने दिया ही 28 में पहली बार, अब कोई 21st ईयर में पहली बार दे रहा है, तो ये भी है। तो बैकग्राउंड डज नॉट मैटर, कहाँ क्या करके आए हो वो नहीं मैटर करता, उस एग्जाम के लिए कितना कंसर्टेड एफर्ट डाल रहे हो वो मैटर करेगा। हाँ, आप एफर्ट डालना मैटर करता है। अगर आप एफर्ट डालने को रेडी हो, तो बैकग्राउंड तो मैम आप होटल मैनेजमेंट से हो, ठीक है, या फिर बीकॉम से हो, या फिर एमबीबीएस करके आओ, मतलब आप कुछ भी करके आओ। कई सारे सीए मेरे साथ, अभी सीए रिकमेंड हुए, मतलब सेलेक्ट हुए, सीए भी है, बीकॉम, एग्रीकल्चर से भी है बंदे जो स्पेशलिस्ट में भी आए हैं, वो नॉर्मल एग्रीकल्चर से भी है वो, तो बीकॉम करके भी, और बीकॉम नहीं, मैं क्या बोल रहा था, होटल मैनेजमेंट। तो मैम आप कहीं से भी हो सकते हो,
बट हाँ, आपको फिर पढ़ना है, वो जरूर है। जो मेहनत है वो तो हम क्या करते हैं ना, इन चीजों में जाके हम मेहनत से दूर भागते हैं। मेहनत से दूर भागने के कारण है फिर हम बहाने ढूंढने लगते हैं कि यार वो तो टॉपर था इसलिए कर पाया। मेहनत करो, ऑब्वियसली होगा, गारंटेड होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो सकता है। To relate, I think the students who are watching this video must be able to relate. यही करते हो actually आप लोग, which you should not do. You need to follow the right strategy Yes, and then put in your effort. और right strategy भी we are going to discuss with you today. राइट विकास, आपके साथ वो भी डिस्कस करेंगे हम। तो चलिए फिर थोड़ा स्ट्रैटेजी की तरफ चलते हैं। फेज 1 की पहले बात कर लेते हैं। ऑल्दो दिस वाज योर सेकंड अटेम्प्ट, तो पैटर्न चेंज था पिछली बार से। डिस्क्रिप्टिव वाज एडेड, मेरिट सेक्शन बन गया। तो वो जब पता चला पहले तो पैटर्न चेंज हो रहा है, वो तब क्या रिएक्शन था? मैम पहले तो मैं इसे भर ही गया था क्योंकि लास्ट टाइम मैं अटका था और फिर से मेरे वो आ गए थे, क्या नाम, पीसीएस के मेंस से। तो मैंने कहा यार पिछली बार भी अटक रहा हूँ, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग इसके लिए टाइम अलग से आपको देना पड़ता है, क्योंकि आप आउट ऑफ कॉलेज बहुत साल हो गए आपको ये सीसैट करे हुए। तो जैसे तो मुझे 1 या 2 दिन पहले मेरे दोस्त ने फोन किया कि डूड दे हैव चेंज द पैटर्न, अब मैथ्स रीजनिंग इनकी ज्यादा वेटेज नहीं रही, तो यू जस्ट हैव टू क्लियर द कट ऑफ। और तेरी मैथ्स रीजनिंग अच्छी है ही, तू हाँ अब तू मतलब जो बैंक वाले जो बंदे होते हैं जनरली वो दे आर मतलब दे आर प्रैक्टिसिंग डेली, उनकी स्पीड बहुत हाई होती है, बट हमें तो कट ऑफ क्लियर करनी है। तो जैसे ही मुझे ये पता चला तो मैंने लास्ट डे, सही बता रहा हूँ, वो बस प्लीज भगवान भर लूं ऐसे वाली सिचुएशन में मैंने फॉर्म भरा, ठीक है, फॉर्म भर दिया। तो मैथ्स रीजनिंग तो मुझे पता था कि कट ऑफ है, क्लियर करनी है, तो इतना लोड लिया नहीं मैंने उसका। और इंग्लिश का भी मतलब आर्मी स्कूल से मैंने एजुकेशन ग्रेजुएशन मतलब स्कूलिंग की है, तो इतना इशू उसका भी नहीं था। जो मेन इशू आता है मैम इन प्रीलिम्स भी, वो है मैम करंट, एआरडी एंड ईएसआई, क्योंकि यही इन्हीं से मेरिट बनती है। एंड ये बहुत बहुत ज्यादा ही करंट होते हैं, फैक्ट हैवी होते हैं। इसमें आपको जैसे यूपीएससी में क्या होता है ना, नॉलेज कॉन्सेप्ट्स वो यहाँ नहीं पूछते, यहाँ डायरेक्ट दे आर आस्किंग फैक्ट्स जो आपको होने चाहिए बैक ऑफ माइंड। एंड आपने अगर 1 या 10 बार नहीं पढ़ा, उस 4 से 5 6 7 बार नहीं पढ़ा, तो आप नहीं कर सकते। आपने आज देख लिया कि अच्छा केन दुबई जो व्हील है वो दुबई में बनी है, आज आपको लगा यार तो मैं कभी भी कर दूंगा, लेकिन नहीं हो सकता। अगर आपने उसको 1 हफ्ते में 2-3 बार नहीं देखा, एग्जाम में जाने से पहले 1-2 बार नहीं देखा, अगेन मैं बोलना चाह रहा हूँ 5 से 6 बार मल्टीपल रिवीजन इन क्विक सक्सेशन। मैं 5 महीने 5 रिवीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, 1 महीने 5 रिवीजन की बात कर रहा हूँ। दोनों में डिफरेंस है। बच्चे क्या करते हैं कि 5 महीने 5 बार पढ़ेंगे, बोले यार मैंने 5 बार पढ़ा, मैं आपने 1 ही बार पढ़ा, क्योंकि अगेन वो इट वाज न्यू फॉर यू। तो प्री में मैं यही कहूंगा मैम कि आप पहले तो अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बना लें, या तो अगर कोर्स ले रखा है तो कोर्स से आप शॉर्ट नोट्स बना लें, क्योंकि आपको रिवीजन मल्टीपल टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि फैक्ट्स हैं। ये कॉन्सेप्ट तो है नहीं कि जो आपके बैक ऑफ माइंड चले जाएंगे, ये फैक्ट्स हैं। और जो जब जितनी बार देखोगे उतनी बार उनकी मतलब प्रोबेबिलिटी है कि आप टिक कर सको इन एमसीक्यू, क्योंकि वहां पे एमसीक्यू देना है आपको, रिकॉल तो कर, बस रिकॉल करना देख के, तो वो उसके लिए आप रिवीजन रिवीजन रिवीजन। तो आप जैसे बैंकर सड्डा से मैम आप करंट अफेयर्स का बना सकते हैं, अगर जिसको छोटा मतलब जिसने कोर्स नहीं ले रखा है। अदरवाइज मैम यूट्यूब से, मैंने एआरडी भी यूट्यूब से की थी, ठीक है, वीना मैम से, वीना मैम की लगभग 200 एमसीक्यू की सीरीज, कई सारे क्वेश्चंस लाती हैं, वहां से कई सारे क्वेश्चन वहां से फंसे थे। और भी यूट्यूब मतलब एजुकेटर्स हैं, उनके थ्रू भी कुछ क्वेश्चन फंसे थे। एक प्लांटिंग क्वेश्चन फंसा था, जिसमें क्विन कॉक्स करके प्लांटिंग मेथड होता है, प्लांटिंग सिस्टम। यस मैम। तो ऐसे ही कई, मैंने तो लिटरली बता रहा हूँ, मैंने यूट्यूब से ही एंड ऑनलाइन सोर्सेस से ही अपने पेजेस पे फ्री के जो नोट्स बनाए मैंने ऑब्जेक्टिव के लिए, वही मेंस में काम आ गए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कुछ अलग सा डिफरेंस था नहीं। तो प्री और मेंस मैम मैंने लगभग साथ में ही लेके चला हूँ टिल 15 दिन पहले तक। तो जो मुझे समझ में आ रहा है दैट आपके नोट्स प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि एक तो जब नोट्स हैं तो रिवीजन में भी इजी रहेगा। क्या होता है ना दैट लेट्स से सीधा सोर्स से पढ़ा तो रिवाइज करने में ही विल फील वेरी डिफिकल्ट कि अब फिर से खोलो उसे दोबारा पढ़ो। मैम यही तो होता है ना, हम इतना बड़ा बुक लिस्ट कर लेते हैं और फिर हम उसे टच नहीं करते हैं, और फिर हमें कहते हैं हमने पढ़ तो लिया था। एक तो पढ़ने को वो मैटर नहीं करता मैम, आप उसके शॉर्ट नोट्स बना के अपने पास रखें, क्योंकि आप उसी को दोबारा देख पाओ। आप इतनी सेकंड टाइम हिम्मत रहेगी, इनर्शिया रहेगा ही नहीं कि आप अगेन उस चीज को फिर से लाइन टू लाइन पढ़ने जाओ, ये हाईली इम्पॉसिबल है। हमें लेकिन हम क्या है कि ड्यू टू लेजीनेस या फिर बोलते हैं प्रोक्रास्टिनेशन, यार नहीं इस बार ऐसे पढ़ लेते हैं, सेकंड टाइम जब पढ़ेंगे तो नोट्स बनाएंगे, वो सेकंड टाइम फिर आता ही नहीं। तो आप पहले टाइम पे ही साथ साथ में या तो हाईलाइट करनी है तो कुछ तो इंपॉर्टेंट नोट्स बना के रखें, क्योंकि आपने अगर एक बार इनर्शिया लूज कर दिया, जैसे कुछ भी अगर आपने नोट्स बनाया, तो अगली बार वो हेल्प करेगा, मोटिवेट करेगा कि डूड तूने इतना कर लिया है, थोड़ा और नोट्स बचे। एटलीस्ट आप कुछ भी कर ले, मतलब फर्स्ट रिवीजन, फर्स्ट जब टाइम पढ़ने जा रहे हो थोड़ा नोट्स बनाने की कोशिश करें। पहले बोलते हैं, कई बच्चे बोलते हैं कि यार हम पहले बस सिर्फ पढ़ेंगे, फिर वो कभी बस पहले बार सेकंड बार पढ़ते ही नहीं है फिर जनरली, क्योंकि फिर लगता है सेकंड में फिर से इतना पढ़ना है।
इसलिए आप पहली बार में कुछ ना कुछ तो नोट्स बनाए पहली बार में भी, क्योंकि बेस्ट नोट्स तो सेकंड डिवीजन में भी बनते हैं, हकीकत है। लेकिन पहले में अगर आपने कुछ नोट्स बना लिए हैं फर्स्ट रीडिंग में, तो आपने एक इनर्शिया आपने ब्रेक कर दिया, प्रोक्रेस्टिनेशन वाला जो इनर्शिया है ना, कि वो ब्रेक कर चुके हो आप। अब आप नहीं करोगे, क्योंकि अब आपको बस कुछ ही चीज करनी है, तो यू विल गो फॉर इट। एंड नोट्स पक्का बनाए, दिस इज माई मतलब एक नोट्स बना के आप करें। राइट, ये बहुत बहुत अच्छी एडवाइस है। लेकिन ना आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू व्हिच आई गेट अ लॉट फ्रॉम स्टूडेंट्स कि मैम नोट्स बनाने को तो आप एम्फसाइज कर देते हो एज इफ आपने बोला, लेकिन अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि व्हाट टू राइट इन नोट्स, व्हाट हैपेंस इज व्हेन दे रीड, वो एज अ स्टूडेंट वो खोलना शुरू किया पढ़ना, वो दे एंड अप राइटिंग एवरीथिंग इन देयर नोट्स ओनली। तो उसमें आप टिप्स दो कि एक्चुअली ऐसे नोट्स बनाना चाहिए। ओके ओके, मैम फोटो को पहली बार फोटो कॉपी तो करनी नहीं है फोटो कॉपी के लिए बना तो फोटो कॉपी दुकान है तो आप जैसे इन दुबई पे से मान लो क्वेश्चन आ गया, जैसे सैंड कैसल, एक डेनमार्क में सैंड कैसल बना था, तो आपको बस ये लिखना है सैंड कैसल डेनमार्क, दैट्स इट। आप सैंड कैसल आए, क्योंकि वहां पे आपसे कॉन्सेप्ट नहीं पूछ रहे कि सैंड कैसल कैसे बना, किसने बनाया, दे आर नॉट आस्किंग दैट। वो बस ये अगर पूछे कि सैंड कैसल बना, उसकी क्या साइज है, मान लो उसकी कोई साइज मेंशन कर रखी है, सैंड कैसल 520 मीटर्स डेनमार्क। अब इसको अगर आप 10 बार आप देख लोगे, तो आपके दिमाग में फिट कर जाएगा कि 510 मीटर के अराउंड समथिंग है। फूड प्रोडक्शन इन इंडिया, फूड प्रोडक्शन 2021 इतना टन, दैट्स इट। अब उसका बाइफर्केशन आप मतलब करने मत बैठे, क्योंकि अगर आपको बाइफर्केशन करने बैठे तो आपके पास नोट्स ऑलरेडी इलाबोरेटेड नोट्स तो पड़े ही है ना। आपको वापस जाना, आपको वापस जाए, आप इतना शॉर्ट लिखे, मतलब एक पेज में जो 10 पेज को आप एक पेज में डाल सके, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। 10 पेज को आप एक पेज में डाल सके, ऐसे नोट्स बनाए। और एक बार पढ़ने के बाद आपको फीलिंग आने लगती है यार, जैसे आप प्रीवियस पहली बार तो प्रीवियस क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट मारे हैं, तो आपको एक गट फीलिंग आने लगेगी कि दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच दे आर गोइंग टू आस्क, तो उसको आप मस्ट लिखें, ठीक है। जैसे अब प्लांटिंग टेक्निक्स, अब प्लांटिंग टेक्निक्स में आप लोगों ने जो मटेरियल प्रोवाइड कर रखा है उसमें आपने एक्सप्लेन कर रखा है, अब मैं उसको क्यों यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ। अब मुझे बस ये दिख रहा है कि 6 टाइप के प्लांटिंग मटेरियल मेथड होते हैं, 5 या 6 टाइप के, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर। अब रेक्टेंगुलर में क्यों, मतलब कौन से पेड़ टाइप, मतलब फ्रूट्स होते हैं, या फिर मतलब जो भी मतलब प्लांटेशन है, जैसे फिर अब फिशरीज है कि कैटाड्रोनमस है, एनाड्रोमस है। अब इनको एरो करके आप बस मतलब एक बहुत छोटा छोटा, मतलब इतना छोटा कि बस आपको नाम पड़ती बस ये, जैसे कांकरेज क्या है, मिल्च एनिमल है या फिर ड्रॉट एनिमल है, बस इतना ही। अब कांकरेज की क्वालिटीज आपको यहाँ नोट्स में नहीं लिखनी, वो आपने मेन नोट्स में पढ़ रखा है। अगर आपको डाउट वापस आ रहा है तो आप जाके क्वालिटी चेक कर सकते हैं, लेकिन मेन आपको ये रखना है कि कांकरेज क्या है मेन। एंड हाँ, अब जैसे कि मान लो साहिवाल है, तो इट इज अब उसकी स्पेशल क्वालिटी है कि हाईएस्ट मतलब मिल्क देती है वो, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं नोट्स में। लेकिन हर गाय कितना लीटर देती है, तो फिर तो हाईली इम्प्रोबेबल है। फिर सबसे ज्यादा बटर, जैसे सबसे ज्यादा फैट कंटेंट किसमें, वो आप उस गाय के बगल में आप लिख सकते हो। मेरा बताने का ये, दिस इज व्हाट आई एम एम्फसाइजिंग, कि नोट्स आपके 10-15 पन्नों का एक पन्ने में आना चाहिए। मटेरियल 10-15 पन्ने का मटेरियल तो एक पन्ने में आ जाए। तो 2-3 हाइलाइट्स आई जस्ट गिव आउट जो कि आई थिंक आर गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए, क्योंकि ये चीज बहुत स्पेशली फॉर द न्यू स्टूडेंट्स कि समझ में नहीं आता मुझे क्या लिखना है, फिर कॉन्फिडेंस नहीं आता कि यार व्हाट इफ मैंने नोट्स बना लिए लेकिन उसमें से तो कुछ आया ही नहीं। तो उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज यू मेंशन्ड हियर, वो जरूर देखने आपने। यू कैन नेवर गो एंड मेक नोट्स अंटिल अनलेस यू हैव सीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फिर तो लिखोगे ही सब कुछ, फिर तो बनाने का मतलब ही नहीं है। हाँ, फिर तो बनाने का मतलब ही नहीं है जब तक आपने, और प्रीवियस ईयर का मतलब सिंपल सही है कि उससे क्वेश्चन कभी नहीं आते, बहुत कम ही आते हैं। एक आध बार आ जाए तो आज बहुत मतलब लकी हो जाओगे आप, लेकिन उससे बस एक पैटर्न पता चल जाता है कि अच्छा दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आर आस्किंग। कि न्यूज में जैसे कि जैसे खासकर डिफेंस में जैसे ये पूछते हैं ये वेसल क्या था, ये एक्सरसाइज किसके बीच में। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखोगे तो आप तो फिर सब कुछ पढ़ने बैठ जाओगे। ये गोली मतलब बंदूक कैसे काम करती है, आपको जानना नहीं है, उसका फंक्शन ही नहीं जानना, बस किसने बनाई, कहाँ बनी, किस काम किया, दैट्स इट। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप जरूर देखिए, उसके बेसिस पे ही यू विल बी एबल टू मेक नोट्स। नोट्स बनाने के लिए जो आपने रूल बताया ना, मेरे को बड़ी खुशी हुई है सुन के, क्योंकि हम पता है क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स को, विकास 1/10 गोल्डन रूल, 10 पेज पढ़ो 1 पेज पे आना चाहिए। Yes, तो वही एग्जैक्टली वही होना चाहिए। आपने बताया है कि वही करना चाहिए आइडियली, सो दैट देखने में भी आसान होगा। एंड ऑफ कोर्स आफ्टर दैट मल्टीपल रिविजन्स, यू हैव एक्चुअली एम्फसाइज्ड ऑन 5 रिविजन्स अ मंथ। यस मैम, मल्टीपल रिवीजन इन क्विक सक्सेशन। बच्चे क्या बोलते हैं, साल में 12 बार पढ़ ली, बोलते हमने मल्टीपल रिवीजन कर लिया। नहीं, आपने 12 महीने में 12 बार पढ़ा है, आपने एक ही बार पढ़ा है। मल्टीपल रिवीजन क्विक सक्सेशन, मेरा ये बोलना मतलब एक हफ्ते में 3 से 4 बार पढ़ लो, सो दैट मंथ में 5 बार 6 बार हो जाए, तो फिर आप नहीं भूलोगे।
वेरी गुड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स, ये तो लिख लेने चाहिए सो दैट यू नेवर गेट कंफ्यूज्ड पढ़ते हुए स्टूडेंट्स दोस हु आर वाचिंग दिस वीडियो, राइट? तो ये तो हुआ आपका फेज 1 के मेरिट सेक्शन का, करंट अफेयर्स के बारे में आपने बताया, राइट? या नोट्स मेकिंग की स्ट्रेटजी वी हैव डिस्कस। लेकिन अब यहाँ पे ना ESI प्लस ARD इज आल्सो इन फेज 2, तो ये मन में रख के यू प्रिपेयर्ड की आंसर राइटिंग भी करनी है नेक्स्ट फेज में, या दीज आर द थिंग्स जो फेज 2 में भी काम आने, या वन फेज एट अ टाइम आपने पिक किया? मैम 1-1.5 महीने जैसे 1-1.5 महीने पहले तक तो मतलब साथ में ही चलता रहा था, ठीक है, क्योंकि ARD का पहली बार तो आइडिया भी था कि कैसा सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे। तो उसके लिए मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए जैसे दृष्टि IAS करके एक इंस्टीट्यूट है, तो या फिर UPSC, क्योंकि मैं UPSC कर रहा था, तो मेरे पास कुछ ESI से रिलेटेड मतलब प्रीवियस UPSC क्वेश्चन पेपर थे, तो वहां से इकोनॉमी स्पेसिफिक, एग्रीकल्चर स्पेसिफिक क्वेश्चंस मैंने उठा के उनको प्रैक्टिस कर रखे देखा था मैंने। क्योंकि मुझे अब सिंपल सी बात है, उसकी इसकी प्रैक्टिस कैसे होगी, कैसे क्वेश्चन आएंगे, किसी को आइडिया नहीं था। तो मैंने अपना UPSC का ही बेस छोड़ा नहीं, मैंने वही प्रैक्टिस की जो मैं प्रैक्टिस चलती रहती थी। तो आंसर राइटिंग तो मेरा वहां से चल रहा था, तो उसके लिए मैंने अलग से एफर्ट बहुत नहीं मारे, तो आई वोंट लाई कि मैंने उसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट मारा, यस, वो अलग से एफर्ट नहीं मारा। हाँ, प्रैक्टिस का हैंड्स ऑन का, क्योंकि बहुत दिन से आउट था मैं प्रैक्टिस से, तो हैंड्स ऑन के लिए मैंने 250 रुपए का कीबोर्ड आता है मार्केट में, तो मैंने वो खरीद लिया था। थोड़ा कभी कभार बैठ के 1-2 क्वेश्चन टाइप करके देख लेता था, तो मैंने देखा कि स्पीड ओके है। और 600 वर्ड में तो पहली बार लिखना नहीं है मुझे, वो तो मैं पहले ही समझ गया था। 600 वर्ड में आप लिख ही नहीं सकते हो, ऐसे थोड़ी लिखना है, क्वेश्चन लिखना है। वो तो पता नहीं कैसे वो दे आर मतलब सेटिंग 600 वर्ड्स। तो मैंने डिसाइडेड था कि 600 वर्ड का मैं मैक्स टू मैक्स 350 से 400 वर्ड में जाऊंगा, एंड 400 वर्ड वाला मैं 150 से 200 वर्ड में जाऊंगा, ये मेरा मैक्स पहले से डिसाइडेड था। यही फॉलो उसमें किया ढंग फिर के पॉइंट्स डाल, एग्जाम में? यस मैम, यही फॉलो किया। अच्छा, टाइम ही नहीं, बस टाइम ही नहीं था। एक क्वेश्चन तो मैंने 150 वर्ड में खत्म किया था। ये जो एक कंपलसरी था, रिप्रोडक्शन वाला एक चैप्टर था, क्रॉस एनिमल ब्रीडिंग का, आई थिंक क्रॉस समथिंग, ब्रीडिंग था आपका क्रॉस जो, ब्रीडिंग, यस हाँ हाँ यस 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 मैम। तो एकदम ही आउट ऑफ ब्लू था, मतलब मगर तो उसमें अब 150 वर्ड भी लिखना मतलब इट वाज वेरी हार्ड। तो वही, हाँ, लेकिन ये मैंने जो एनिमल स्पीसीज प्रिपेयर की, जैसे करन स्विस, करनाल से जो बनाई क्रॉस ब्रीड, तो वो मैंने कुछ एग्जांपल, ये एग्जांपल्स वहाँ बहुत काम आते हैं कि करन स्विस कैसे क्रॉस ब्रीडिंग का एग्जांपल है। फिर मैंने मतलब नॉर्मल फर्टिलाइजेशन, फिर मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन सब करके दिखाया मैंने, और यहाँ पे बस एग्जांपल्स डालता गया। तो जो मैंने नोट्स बनाए थे, ये नोट्स काम आ गए वहाँ पे। जैसे अभी माइक्रो इरिगेशन वाला एक क्वेश्चन आया था, तो वहाँ पे जो वेरियस डिफरेंट काइंड ऑफ इरिगेशन है, वो मैंने एग्जांपल डाले। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें, और प्री से पहले जो आप पढ़ाई कर रहे हो, मेन से 50% तो ऑब्जेक्टिव वही कवर कर ही रहे हो आप। तो आप जो प्री से पहले नोट्स बना रहे हैं, आप वही नोट्स बनाए, क्योंकि एक मंथ में बहुत चेंज नहीं आता, ड्रास्टिक चेंज नहीं आता, वो आप कवर कर सकते हैं, एक वीक के अंदर आप कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी आंसर राइटिंग की, तो आंसर राइटिंग आप प्रैक्टिस करें, पहले पेपर पे लिख के देखना चाहे पेपर पे लिख लें, क्योंकि एक स्ट्रक्चर बना लें, टाइपिंग बाद में करें। मैंने एग्जाम के दिन भी यही किया था। मैं जब पहले क्या करता था, पहले एक स्ट्रक्चर वहीं पे लिख लेता था, आई डोंट गो डायरेक्टली ऑन द कीबोर्ड। पहले एक स्ट्रक्चर बना लिया, ये लिखना है, मतलब पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, एक स्ट्रक्चर बना लिया कि पहले ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, दैट्स, फिर मैं टाइप करता रहा, क्योंकि इट मेक्स द वर्क इजी। वरना आप वहाँ पे टाइपिंग करने जा रहे हो, और उनका कंसोल जो होता है थोड़ा अजीब सा होता है, एंटर मारो पता नहीं कहाँ चला जाता है, फिर वापस, तो वहाँ पे आप, हाँ, वहाँ पे आप नहीं कर सकते चेंजेस ज्यादा। तो ये चेंजेस आपको प्रैक्टिस में ही आएगी। राइट, ये भी बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं जो आपने मेंशन किया। दीज आर द प्रैक्टिकल पॉइंट्स एक्चुअली, द वन हु हैज बीन थ्रू द प्रोसेस, उसमें जो चीजें उनको पता चली हैं वही आप शेयर कर रहे हो। एंड दीज, वो कहते हैं ना, द स्टूडेंट्स हु आर एक्चुअली सिंसियर इनफ, तो वो गलतियों से यही सीख जाएंगे कि ये नहीं करना है मुझे, या फिर ये करना है। और एल्स द अदर ऑप्शन इज दैट यू वेट, दैट आई विल गो देयर, आई विल अटेम्प्ट माय ओन मिस्टेक्स, पूरी गलतियां करके फिर मैं नेक्स्ट टाइम ये नहीं करूंगा, या तो वो कर लो, या द पॉइंट्स दैट आर बीइंग शेयर्ड हियर उनको ध्यान रखो। तो ये ही प्रैक्टिकल चीजें हैं। लाइक व्हेनेवर यू आर राइटिंग एन आंसर, पहले तो भागो मत पीछे वर्ड लिमिट के कि मुझे 600 ही लिखने हैं, कोई नहीं मार्क्स देने वाला उसके पीछे, राइट? गुड कंटेंट, मतलब नहीं। तो आपने बोला लिमिटेड, चाहे आप 50% भी लिखो, लेकिन कंटेंट, आई एम श्योर कंटेंट आपका अच्छा था, बिकॉज यू मेंशन्ड एग्जांपल्स अच्छे आपने बीच में मेंशन किए। तो आंसर को अच्छा बनाना है, कंटेंट अच्छा, एग्जांपल्स डालोगे तो और अच्छा। प्लस प्रैक्टिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। अब आपने किया था, एज यू सेड, बिकॉज बेसिकली आपको अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस पता थी, राइट, कि मैं ये लिख लूंगा, हो जाएगा। ठीक है। तो अभी जैसे मेरा एक फ्रेंड था, उसने इससे पहले, उसने पहले उसी ने मेरे को जैसे बोला ना आपने कि आप पहले दूसरों की मिस्टेक से सीख लें, तो ये जो मैं बता रहा हूँ, पहले मेरे दोस्त ने मेरे को बता दिया था कि डूड, वहाँ जो कंसोल आता है, उसने कुछ दिया था, उसने कोई एक एग्जाम दिया था, नॉट ECGCPO सर, मैं उसमें शायद प्रीलिम्स में ही, ये टेक डिस्क्रिप्टिव एग्जाम,
तो वो देख आया था, तो ही वॉज वेरी पजल्ड, क्योंकि पहली बार उसने कौन सा डायरेक्ट टच किया था। बोलता यार कि मैं लिखते जा रहा हूँ, वो फिर गायब होते जा रहा है, फिर मुझे बैक फ्रंट करना पड़ रहा है। तो मैंने उस दिन फटाक से एक टेक ले लिया कि जैसे ही स्क्रीन खत्म होगा मैं एंटर मार के नीचे आ जाऊंगा, मुझे आगे नहीं बढ़ना, मुझे बैक फ्रंट नहीं करना, मैं एक वर्ड कम लिखूंगा स्क्रीन से, लेकिन मेरे को बैक फ्रंट नहीं करना। तो मैं ये मैंने वहां से सीखा था। फिर ये मतलब ये जो भी मतलब ये उसने बताया था कुछ प्रैक्टिकल, वो मेरे काम आए, प्रैक्टिस में काम किया, वहां भी काम आए। राइट तो ये अब आप लोगों के भी काम आएंगे जो वीडियो देख रहे हैं। इसमें एक और आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला अबाउट द स्ट्रक्चर, कि पहले स्ट्रक्चर बना लो, क्योंकि एग्जाम में इवन व्हेन यू आर राइटिंग, जो मैंने अब तक समझा है बच्चों से, व्हाट हैपेंस इज वहां जाके यू देयर इज अ टेंडेंसी दैट यू मे गेट कंफ्यूज्ड। टाइप करना है, सब टक 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 टाइप कर रहे हैं, इंटरफेस अच्छा नहीं है। स्टार्ट होते ही एवरीबॉडी स्टार्टिंग, मैं भी खुद एक सेकंड में समझ गया, क्वेश्चन तो पढ़ो। लिख क्या रहे हो, क्वेश्चन तो पढ़ो। मेरे मन में आया जैसे क्वेश्चन स्टार्ट हो, बंदे स्टार्टेड राइटिंग इट, यार फिर तो नहीं होगा हमारा। नहीं, ये होता है कि वहां पे फर्स्ट टाइम वहां पे कंसोल देख रहे हो, वो कंफ्यूजिंग है। अभी क्वेश्चन पे एक फीलिंग आ जाती है, सब लिख रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हो, तो उससे बेटर है यू मेक योर ओन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर से क्या होगा ना, लिखते लिखते ऑल्सो यू गेट थोड़ा सा बहक जाते हो, और लिख लेता हूँ, देन यू कम बैक व्हाइल लुकिंग एट योर स्ट्रक्चर कि अच्छा दिस पॉइंट आई हैव टू मेंशन। तो ईएसआई और एआरडी का, हाँ राइट, आप बताइए प्लीज। नहीं यही मैं कह रहा हूँ, तो पहले तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना है कि सिर्फ टाइपिंग से नहीं हो रहा। तो ये टाइपराइटर का एग्जाम नहीं है, टाइपिस्ट का एग्जाम नहीं है। ये दिमाग से कीड़ा, क्योंकि जैसे ही एग्जाम ऑन होता है सब ऑन, तो वो उससे आपको बस ये, आप अगर उस फियर को रोक पाए, आप उस फियर को रोकने के बाद स्ट्रक्चर में अगर आप टाइम इन्वेस्ट कर पाए, मैं कह रहा हूँ कि बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आपको पता है कि कितने पॉइंट लिखने हैं, कौन सा पॉइंट लिखना है। क्योंकि आप वरना अगर आप डायरेक्ट लिखते जा रहे हो तो आपको पता नहीं कब रुकना है, कब खत्म करना है। अगर क्योंकि बहुत मेंटली प्रोसेस करना, साथ में लिखना, इट इज अ वेरी चैलेंजिंग टास्क। वो बोलते हैं ना कि ये आप हैंड्स ऑन आपने अगर नहीं किया तो नहीं होगा। तो आप स्ट्रक्चर बना के करें, जो आपने पॉइंट बोला बहुत सही पॉइंट होगी, पहले स्ट्रक्चर बना लें, सो दैट जो पॉइंट डालना है आप देखें कि आप डाइग्रेस ना हो रहे हैं। आप डाइग्रेस होते ही आपने देखा पॉइंट डालना भूल गया, तो वापस में आपने पॉइंट डाल दिया। ये पॉइंट है। ठीक है, तो ईएसआई एंड एआरडी बोथ यू हैड प्रैक्टिस्ड फ्यू क्वेश्चंस बिफोरहैंड, थोड़ा सा लाइक पेपर से अरे पहले। एडिट आप लोगों ने, यस मैम, आप लोगों ने प्रोवाइड किया था 100 क्वेश्चंस का एक सेट। हाँ बेसिकली जो मेरा जो प्री निकल गया था, तो आप लोगों ने एक सेट प्रोवाइड किया था। उस सेट से भी मैंने, मतलब वही मैं कह रहा था कि यस, मैं ढूंढ रहा था, तो आपने फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया था उस समय। तो वो मतलब उससे पता चल गया कि क्योंकि आरबीआई वाले क्वेश्चन थे वो, आरबीआई कैसे क्वेश्चन पूछता था पहले एंड लास्ट टाइम उन्होंने क्या पूछे थे। तो वो थोड़ा उसने हेल्प किया, क्योंकि वो स्पेसिफिक क्वेश्चन थे सिर्फ इकोनॉमिक सेक्शन से। तो वो भी, हाँ, तो वो क्वेश्चन भी मैंने देखे थे। ये पॉइंट हमारा, यस, इट हेल्प। ठीक है, वंडरफुल, ग्लैड टू नो। क्योंकि हाँ, नाबार्ड यूजुअली वो टेंडेंसी है दैट बिकॉज आरबीआई चेंज द पैटर्न, तो नाबार्ड ने भी किया, तो एंटिसिपेटेड था कि उन लाइंस पे चेंज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पैटर्न भी वही लाएंगे और वही लाए भी। तो ऑफ कोर्स फॉर दोज जो न्यू हैं, जिनको नहीं पता, अब आपके लिए तो पैटर्न इज चेंज्ड ऑलरेडी, आपको तो ये फर्क नहीं पड़ना चाहिए पहले था या नहीं, अभी फॉर द फ्यूचर एस्पिरेंट्स पैटर्न इज दिस ओनली, तो उसको फॉलो करो। एंड व्हाट अबाउट इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, उसके लिए कुछ स्पेशल प्रिपरेशन किया? मैम अगेन फिर वही कि मतलब ऑनलाइन सोर्सेस पे सब कुछ बता रखा है, ठीक है, कि कैसे अटेम्प्ट करना है। ऐसे तो चलो मेरा इतना वीक पॉइंट नहीं है, तो ऐसे तो मैंने 400 वर्ड लिमिट क्रॉस कर देता हूँ, उसमें तो दिक्कत नहीं होती, क्योंकि ऐसे जब पूछते तो फिर यू हैव टू एक्सप्लेन, आपको दिखाना कि यू नो अबाउट इट, वहां पे बस आप कट्टा नहीं मार सकते। तो 400 वर्ड है, तो मैं तो 450 से 500 वर्ड तक गया था, वहां पे वर्ड लिमिट क्रॉस थी मेरी, मुझे पता है। और तो लेटर एक होता है, लेटर सबसे इजी जो होता है लेटर होता है, उसका अगर फॉर्मेट आपने रट रखा है, इट इज वेरी इजी, 5 मिनट में 5 से 10 मिनट में लेटर हो गया था मेरा। और उसी ने हेल्प किया, क्योंकि वरना मेरा वो छूट जाता है, एक प्रेसी राइटिंग में मैं सही बता रहा हूँ सबसे मोस्ट कंफ्यूजिंग होता है इंग्लिश, क्योंकि सबको ये लगता है कि यार हमें अपने वर्ड्स में लिखना है, या फिर इन्हीं को रिफ्रेज करना है, या फिर क्या करना है। और मजाक, मतलब अभी तक 90% बच्चे इसी में फंसे रहते हैं, मैं खुद फंसा था लास्ट टाइम तक। लेकिन फिर वही है कि मैंने मल्टीपल सोर्सेस देखे, यहाँ पे यूट्यूब पे देखे, अजीत सर का ही शायद वीडियो था, उन्होंने भी एक्सप्लेन कर रखा है, कई सोर्सेस में एक्सप्लेन कर रखा था। तो उससे मुझे पता चला कि नहीं, हमें ये नहीं करना है, मतलब उसका एसेंस लिखना है। वो एसेंस में सब कुछ, मतलब कि जो मेन एसेंस है वो आना चाहिए, वर्डिंग वो नहीं होनी चाहिए। तो इस बार तो थोड़ा इजी मेरे हिसाब से डिस्क्रिप्टिव, ये जो प्रेसी था वो थोड़ा एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में आ गया। जैसे कई बार क्या होता है कि प्रेसी जो जनरली क्या होता है कि ऊपर वाला पार्ट किसी और पैराग्राफ का होता है, बीच वाला पार्ट कंटिन्यूड होता है, और लास्ट वाला पार्ट किसी और पैरा का इंट्रोडक्शन ही होता है। एक स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं होता है।
लेकिन इस बार क्या है, एक स्ट्रक्चर वे में आ गया, तो आपने स्टार्टिंग से ही जो बस एक नरेशन टाइप में चलता गया, वो आसान पड़ गया। लेकिन अगर प्रैक्टिस कर लें आप पैसे की तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि एसेंस निकालना इज अ वेरी हार्ड टास्क। ये विदाउट प्रैक्टिस नहीं आ सकता। अगर आपने कम से कम 25 से 20 पैसे नहीं लिखी है, तो आप फाइनल डे जाके आप बस वही करोगे, रिफ्रेश करोगे, इस को हटा के आर करोगे, आर को हटा के, यही कर सकते हो और कुछ नहीं कर पाओगे। एसेंस निकालना इट्स अ हार्ड टास्क, विदाउट प्रैक्टिस इट कांट कम। तो इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में तो प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। वो चाहे इफ यू हैव टाइम, लेट्स से अभी एग्जाम में टाइम है तो आप अभी भी कर सकते हो। इफ लेट्स से यू स्टार्ट एट अ टाइम जब नहीं है टाइम, तो फिर उसके बाद डेली लिखना पड़ेगा फेज 1 के बाद में। तो ये अभी अगर आप करो तो हेड स्टार्ट ऑलवेज बेटर है। आप अपने कॉम्पिटिटर से एक कदम आगे हो। तो बोलते ना कि जैसे आपने बोला आर्मी में कीड़ा तो बचपन से था, तो एक लाइन वहां भी बड़ी अच्छी है कि इट्स बेटर टू ब्लीड इन ड्यूरिंग ट्रेनिंग, बोलते ना स्वेट इन ट्रेनिंग देन ब्लीडिंग इन द बैटल। जितना आप स्वेट करते हो उतना कम ब्लीड करते हो। राइट। तो वही है कि अगर अभी से आप प्रैक्टिस कर लें तो बहुत अच्छा, फिर तो आपको बहुत कम चांस होगा फेल होने का। लेकिन जितना लेट प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे उतना ज्यादा चांस होगा फेल होने का। बिल्कुल, ऑफ कोर्स, बिकॉज़ यू आर पुटिंग योरसेल्फ इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। वो क्या कहते हैं, बॉर्डर लाइन बना रहे हो खुद को कि ठीक है देख लेंगे। आप जबरदस्ती। यस सर। ठीक है। तो अच्छा, एक चीज और है, ऑल्दो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट फेज 2 आल्सो, ESI ARD, देयर आर फ्यू थिंग्स दैट आई लाइक टू आस्क, स्पेशली रिलेटिंग टू करंट अफेयर्स। जैसे कि एक है गवर्नमेंट स्कीम्स व्हिच आर अ वेरी इंपॉर्टेंट बहुत पार्ट। इंपॉर्टेंट है। तो वो उसके बारे में आपने कैसे किया एंड व्हाट विल यू सजेस्ट? मैम गवर्नमेंट स्कीम्स मैंने बहुत ज्यादा सोर्सेस से कवर किया था, क्योंकि मैंने एक पैटर्न देख लिया था कि दे आर आस्किंग अ लॉट, खासकर मेंस में तो बहुत ही ज्यादा। चाहे आरबीआई हो, चाहे सेबी तो मैंने कभी नहीं देखा, तो आई हैव नो आइडिया, बट नाबार्ड और आरबीआई में दे आर आस्किंग अ लॉट फ्रॉम गवर्नमेंट स्कीम्स। तो जैसे मैंने क्या किया था कि मतलब सबसे ज्यादा मैंने रेफर किया है विजन आईएएस का, एक निकलता है, क्योंकि मैं यूपीएससी कर रहा था तो मुझे पता था उधर से, तो उनका एक सोर्स उनका भी निकलता है, फिर आप लोग प्रोवाइड करते हैं, दूसरे सोर्सेस प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने क्या किया था कि लगभग 2-3 सोर्सेस से एक बार देख लिया, जो इसकी मैंने एक सोर्स से कवर कर ली, उसको फिर मैं दूसरे सोर्स से नहीं करता था। बस मेरा पॉइंट ये था कि अगर आपने ये कवर नहीं कर रखा है क्या, पहले एक सोर्स पकड़ा, उसे बेस बनाया, एंड अगेन मैंने इसके भी नोट्स बनाए थे। ठीक है, मैंने इसके भी नोट्स बना के, अब वही जैसे हर स्कीम को 3 लाइन, ये मेरा फिक्स था। स्कीम पहले मिनिस्ट्री वाइज मैंने स्कीम क्लासिफाई कर ली थी पहले ही, मिनिस्ट्री वाइज लिख ली, तो फिर हर स्कीम के लिए मिनिस्ट्री लिखने की जरूरत नहीं थी। स्कीम, टारगेट ऑडियंस, टेन्योर और एलोकेशन, मेजर एलोकेशन है तो, और एक ये चीज काफी पूछते हैं कहाँ से लॉन्च हुई थी। ये मैंने जब तो अगर लेटेस्ट है तो कब वहां से लॉन्च हुई थी, तो ये 3 चीज में लिखता था। टेन्योर, ठीक है, ये तो काफी इन्होंने शुरू किया था जब व्हेन गवर्नमेंट स्टार्टेड मेकिंग द प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट, उज्ज्वला योजना। और ये 2019 की बात है शायद, आरबीआई में ये बहुत, तो फिर मैंने तब से ये हाँ, अब तो पता नहीं, शायद इस बार नहीं पूछा इतना इन्होंने, लेकिन फिर भी मैंने बी ऑन अ सेफर नोट कि पूछ लें, क्या भरोसा, पहले पूछ चुके हैं। तो ये भी तो जो मेजर स्कीम्स होती हैं, तो जैसे अब हर जगह, जैसे बेटी यही आपने बोला ना, एक चूरू से निकाली थी, चूरू या झुंझुनू से कोई स्कीम निकाली थी, वो आ गया था, ये थी मुझे लगता है उज्ज्वला योजना निकाली थी इन्होंने वहां से, ऐसे कुछ वही में गया। तो ऐसी बनारस से कोई स्कीम निकाली थी, कोई रांची से निकाली थी। तो मैंने इसलिए हर कदम नहीं कर सकते आप, क्योंकि बहुत सारी स्कीम्स है, लेकिन जो मेजर फ्लैगशिप स्कीम्स है उनका लिख लें तो बेटर ही है। आ गया तो अच्छा, नहीं आया तो कोई बात नहीं। तो अगेन वही अपने नोट्स बनाए और फिर यूज इट फॉर द रिवीजन, अगेन अगेन करते रहोगे तो याद हो ही जाएगा। तो दिस इज व्हाट यू फॉलो। अगेन स्कीम्स के लिए मैंने 10 पन्नों में स्कीम्स के सारे नोट्स मैंने कवर कर लिए थे, खासकर मेजर, और बहुत सारी स्कीम्स है, आपको सब पे जाना भी नहीं है। और नाबार्ड में तो खासकर आपको कुछ ही मिनिस्ट्रीज पे फोकस करना है। जैसे मैंने गिन के डिसाइड किया था 7 मिनिस्ट्रीज जो थी, जैसे एग्रीकल्चर, फिर एनिमल हस्बेंड्री वाली एक मिनिस्ट्री है, फिर रूरल डेवलपमेंट है, अर्बन हाउसिंग का भी वैसे मैं गया था, क्योंकि फिर सैनिटेशन वाला ये जो जल शक्ति मिशन है, ड्रिंकिंग वाटर, एंड मैं तो हेल्थ, ये सर, एंड क्योंकि रूरल बहुत उसका मेजर इम्पैक्ट है। फिर हेल्थ एंड एजुकेशन, मैंने बस इन्हीं की बनाई थी। मैं एविएशन, हैवी इंडस्ट्री, हाँ, लेकिन जैसे फाइनेंस है, फाइनेंस में जो इससे रिलेटेड है, ग्राम अटल योजना, ये जो जनधन योजना, तो फाइनेंस में वो निकाल लिए थे पहले ही, ये नहीं करा कि उनको छोड़ दिया था मैंने। फिर अब जैसे उड़ान में तो कुछ भी नहीं है, तो एविएशन में, फिर हैवी इंडस्ट्री में एक स्कीम है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री के अंदर एक स्कीम आती है, जैसे पीएम बीजेपी, जन औषधि परियोजना काइंड ऑफ, तो वो मैंने निकाल ली थी, क्योंकि वो भी हेल्प कर। तो ऐसे आपको देखना पड़ेगा, लेकिन मेजर ये 5 या 6 मिनिस्ट्रीज हैं जिसको आपको मस्ट ही मस्ट सारे कवर करने हैं, तो ये इन्हीं से पूछते हैं।
तो ये द वाइज स्टूडेंट्स मस्ट हैव रिटन दीज डाउन. नहीं लिखा है तो अब लिख लो जो मिनिस्ट्रीज बोली है सर ने, क्योंकि एक्चुअली दिस इज ट्रू. जो सिलेबस से रिलेट कर रही है मिनिस्ट्रीज, बेसिकली रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन जो फुलफिल कर रही हैं. ऐसे तो हजारों स्कीम्स मिनिस्ट्रीज हैं, बट द वन व्हिच इज फुलफिलिंग द एग्जाम रिक्वायरमेंट, क्योंकि उनका फोकस रूरल इंडिया इकोनॉमिक्स में बोला है उन्होंने, एआरडी में बोला है, तो वो है. और द मिनिस्ट्रीज दैट यू हैव मेंशन्ड वो तो लिख लेनी चाहिए, वही अच्छे से करके जाएं. अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ स्कीम सिलेक्टिव जो किसी और की मिनिस्ट्री की है लेकिन फिर रिलेट कर रही है सिलेबस से, तो आपको ये आई थिंक इंडेक्स देख लो आप. हाँ वहां से हो जाए. इंडेक्स देख लो आप, जैसे इंडेक्स आप देख ले, अगर इंडेक्स दिखा, इंडेक्स में आपको कुछ दिख जाता है कि अच्छा अटल जनधन योजना है, अटल पेंशन योजना है, तो दीज आर इंपॉर्टेंट, क्योंकि गांव में भी है. तो आप इनको बस अलग से सेपरेट नोट डाउन कर लें. आप इनको मिनिस्ट्री वाइज ना पढ़ने बैठे, आप बस इंडेक्स देख के पता कर ले और फिर उनको लिख लो बस. ये भी बहुत एफर्ट नहीं लगेगा आपको, 10 दिन में प्रिपेयर हो जाएगा वो करना चाहें तो. ठीक है. Very nice. So very important tips I would say for government schemes, because it is a pillar of your NABARD exam. और कैसे करना है, क्या करना है, ये बहुत डाउट रहता है स्टूडेंट्स को हमेशा, तो ये मुझे लगता है काफी क्लियर कर देगा. इसके अलावा another thing which is related to current affairs is there are many reports, like for example एग्रीकल्चर की ही देख लें, सेंसस, हैंडलूम सेंसस, लाइव स्टॉक सेंसस, एग्री सेंसस, या फिर अपार्ट फ्रॉम दैट आल्सो काफी रिपोर्ट्स रिलीज होती हैं, तो उनको हाउ डिड यू मैनेज टू कवर? कुछ उसकी भी टिप्स दीजिए, जैसे स्कीम्स की बहुत अच्छी दी आपने. मैम सेम का मैं तो बोला, एक अगर आपको ढंग की एक लाइन पता चल गई तो मतलब व्हाई टू लीव इट बोलते हैं ना, कि जैसे आपको अगर एक ढंग का रोड मिल गया तो उस रोड को क्यों छोड़ना. तो अगेन यही रोड यहाँ भी अपनाया मैंने. अगेन मैंने डिसाइड किया कि बहुत रिपोर्ट्स आती है, अब हर रिपोर्ट को अलग अलग बार पढ़ने जाऊंगा तो हाईली इम्पॉसिबल है. तो ऐसे ही मैंने किया, नेशनल रिपोर्ट्स, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, ऐसे करके 2 मैंने पन्ने बना लिए. तो अब जो भी स्कीम्स में पढ़ते हैं वर्ल्ड बैंक, उसके लिए मैंने हाफ पेज छोड़ दिया. अब वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट्स हैं वो रिपोर्ट्स मैंने नोट डाउन कर ली, मतलब जब मिलती आती थी मैं नोट डाउन करता था. ये जो रैंकिंग है, रिपोर्ट किसने, रैंकिंग एंड इंडिया टॉप, जो टॉप है, जैसे मान लो पीस इंडेक्स में कोई भी टॉप कंट्री है उसका नाम, एंड सेकंड इंडिया की क्या रैंक. ठीक है. लेकिन जो इंडियन गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स निकलती थी उसमें कुछ इनसाइट्स भी, क्योंकि फॉरेन रिपोर्ट का इनसाइट मैंने कभी नहीं लिखा, क्योंकि कभी देखा भी नहीं कि भी आते हुए. इधर तो नहीं आता, यूपीएससी फिर भी दे आस्क, इधर दे नेवर आस्क. तो फॉरेन हो गई, जैसे मतलब वर्ल्ड प्रोस्पेक्ट, इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स है, वर्ल्ड बैंक निकालता शायद. तो मैं ऐसे करके मैंने वर्ल्ड बैंक का, आईएमएफ का, जो मेजर इंस्टीट्यूशंस है इनके तो लिख लिए थे इंटरनेशनल में. एंड नेशनल में खासकर नीति आयोग बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब मेरे को लगता है कि हम हर बार नीति आयोग पूछते हैं चाहे कोई सा भी एग्जाम. तो नीति आयोग की मेजर कम से कम, अब नीति आयोग लेकिन ऐसे 25 से 26 रिपोर्ट्स निकालता है, सारे नहीं लिख सकते आप. तो जो मेजर है, जैसे एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडेक्स हो गया, या फिर जो मतलब गवर्नेंस इंडेक्स हो गया, या फिर पब्लिक, मतलब जो मेजर है आपको पता चल जाता है. आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर यहीं पे हेल्प करते हैं कि व्हाट दे आर आस्किंग, क्योंकि ऐसे मतलब 25 रिपोर्ट्स, आप 25 की 25 लिखने बैठे तो फिर तो नीति आयोग की 25 रिपोर्ट्स हो जाएंगी. ऐसे हर मिनिस्ट्री अपनी रिपोर्ट्स निकालता है. नाबार्ड इतने रिपोर्ट्स नाबार्ड निकालता है. फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है, अभी कल परसों कुछ एक उन्होंने नहीं निकाली थी. तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखे, एंड उससे रिलेटेड आपको पिछले 6-7 साल के देख लें क्वेश्चन पेपर, उससे रिलेटेड जो भी इंडेक्स दिख रही है काइंड ऑफ, उसके आसपास भी, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ वही, उसके आसपास भी. तो अगेन इंडेक्स में यही काम करें, इंडेक्स किसने निकाली वो पहले ऊपर लिख लें, नाबार्ड, उसके कम से कम 6-7 इंडेक्स लिख लें आप मेजर, और वो इंडेक्स में उसने कौन सा स्टेट टॉप पे रहा, कौन सा लो पे रहा, और जो मेजर इंसाइट है, क्योंकि हर रिपोर्ट बहुत इंसाइट्स देता है, सारे इंसाइट्स नहीं पूछेंगे, वो मेजर इंसाइट्स. एंड सेंसस का, जैसे आपने बोला, सेंसस का आप लोगों ने बहुत क्यूरेटेड टाइप ऑफ दे रखा है, जो मेजर हाइलाइट्स होती हैं, उस हाइलाइट का भी आप हाइलाइट बना दो. मेरा ये कहने का मतलब है कि उस हाइलाइट का भी हाइलाइट होना चाहिए, क्योंकि आप लोग का हाइलाइट भी, क्योंकि रिपोर्ट असली में तो बहुत बड़ी है, उसका हाइलाइट आपने दिया, आपने फिर जैसा मैंने पढ़ा, मैंने उसका हाइलाइट बना लिया, तो वो मेरा हाइलाइट जो मुझे हमेशा याद रहेगा. तो मैंने सेंसस का SECC 2011 एनिमल सेंसस, फिर एग्रीकल्चर सेंसस, फिर फॉरेस्ट सर्विस, ये रिपोर्ट लाइफ स्टॉक सेंसस, इनके 7 या 8 सेंसस थे जो मेजर सेंसस थे. इनको मैंने 3 पन्नों में, मतलब इससे एक पन्ने में 4, 1 2 3 4, मतलब एक पन्ने में 8 सेंसस मैंने कवर कर लिए थे. तो ऐसे करके मैंने सेंसस कवर कर लिए थे, क्योंकि सारे कुछ नहीं पूछते ये बस बहुत बेसिक पूछते हैं. सेक्स रेशो क्या है जनरली, ठीक है. एनिमल में, जैसे फूड में पूछ लेंगे कि फूड का मतलब ओवरऑल प्रोडक्शन कितना है, वो हर एक सीजन का प्रोडक्शन क्या है ये नहीं पूछने वाले. अब जैसे फिशरी, अब जैसे फिशरीज का एग्जांपल लेता हूँ. फिशरीज में क्या है कि इंडिया एज अ यूनिक सिचुएशन, वर्ल्ड में सेकंड है, लेकिन 70% इसकी इनलैंड फिशरी है. तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है.
ये हर में नहीं होता ऐसा, तो ये आप मेंशन करके लिखें। तो जैसे कुछ यूनिक फैक्ट्स होते हैं वो लिखें, क्योंकि यही पूछते हैं। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ दिया था कि इंडिया में मेजोरिटी ऑफ जो फिशिंग है वो मरीन सेक्टर से है, तो यही रॉन्ग हो जाता है स्टेटमेंट। तो मैं ये बोलना चाह रहा था। तो इम्पोर्टेंट अपने शॉर्ट नोट्स बनाने सीखो, ये सबसे सबसे इम्पोर्टेंट हाईलाइट है एक तो आप लोगों के लिए। फॉर दैट यू मस्ट रेफर टू सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसके बाद रिवीजन पे फोकस करो। तो आई थिंक नोट्स काफी आपकी आपने बताया नोट्स ही बनाए आपने और उन्हीं को फिर अच्छे से रीड किया, तो एक बार का एफर्ट लगेगा। यस मैम, ये जो हार्डेस्ट, अब मैम सिंपल सी बात है, इतने आसानी से तो हो गया नहीं। आप एफर्ट डालना है, एफर्ट डालो ऐसे में जब कि जिससे सक्सेस शॉर्ट शॉर्ट हो जाए। आप उसी को 10 आप इधर से पढ़ रहे हो, उधर से पढ़ रहे हो, उधर से पढ़ रहे हो, आप एक सोर्स पकड़ लो। मैं बार बार कहता हूँ, एक अगर आपने कोर्स लिया है तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि आपका काम आसान हो जाता है। फिर तो आप नोट्स ही नोट्स बनाओ बैठ के दिन भर, क्योंकि आपको फिर स्कैटर ढूंढना नहीं पड़ता। जैसे मेरे साथ दिक्कतें होती थी, कुछ यहाँ से ढूंढ रहा हूँ मैं, कुछ वहां से ढूंढ रहा हूँ, कोई स्कीम यहाँ से ढूंढ रहा हूँ, कोई चीज ऑनलाइन सर्च कर रहा हूँ, कोई यहाँ से मिली। अगर आपको एक ऑलरेडी मिल, जैसे आप लोग का गवर्नमेंट स्कीम साइट आता है सेक्शन, मेरे को लगता है आप सब कुछ ही कवर कर देते हो। तो उसको अगर एक बंदा बैठे तो हफ्ते भर में भी कम, बस ये नहीं कि दिन भर हफ्ते भर में सिर्फ स्कीम्स ही लिख रहा है। अगर ऐसे वो तो 2 दिन में कर दे, अगर दिन भर बैठ के स्कीम्स लिखी। तो मैं ये बता रहा हूँ कि अगर साथ में आप कुछ और भी कर रहे हो, कुछ और भी चीज पढ़ रहे हो, मैथ्स भी कर रहे हो, आप 1-2 दिन में, 3 दिन में, हफ्ते भर में आप गवर्नमेंट स्कीम्स कवर कर सकते हो। बट हाँ, नोट्स जरूर से जरूर बनाए, क्योंकि लास्ट में आप वही पढ़ोगे, क्योंकि आपका बंडल लास्ट में नहीं पढ़ा जाएगा। राइट, तो हाईली इम्पॉसिबल है। वो डिमोटिवेटिंग लगेगा ना कि अब ये खोले, इतना बड़ा खोले, टाइम ही कम है। ऑन द अदर हैंड अपने नोट्स अच्छे लगेंगे। Yes, ma'am. ठीक है, wonderful strategies you have shared with the candidates, with the aspirants, and ना एक काम कैंडिडेट्स को जरूर करना चाहिए कि अब ये जो आपने स्ट्रैटेजी बोली है इसको फॉलो करें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखें, सो दैट दे अंडरस्टैंड जो आप ये कब से बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें एक चीज बताओ, आई एम क्यूरियस टू नो काफी ज्यादा। आप, ये मैं आपसे पहले भी पूछना चाह रही थी, ये जो मोटिवेशन है कि ये ऐसे करना है या अच्छे से आई हैव टू फोकस करना है, वो मोटिवेशन कहाँ से लाए इतनी? अरे मैम, मतलब ये आज मैं खुद कई बार, मेरे दोस्त जो हैं वो भी बार बार ये क्वेश्चन कहते हैं कि क्योंकि दिस इज द मोस्ट चैलेंजिंग टास्क। ठीक है, ये हर, क्योंकि सीट्स है नहीं, ठीक है, सीट बहुत कम होती है और आपको बनना वही है। तो आपको फ्रस्ट्रेशन डील करना आना चाहिए। अगर, और इसके लिए मैं सबसे पहली बात बोलूंगा, मोटिवेशन अगर आपको बना के रखना है तो 2 काम मस्ट है, फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ। अगर इन दोनों से एक भी कम है तो यू विल सफर, दैट फॉर श्योर। तो जब तक आपका स्टूडेंट फेज है तो जंक से थोड़ा बच के रहे, क्योंकि जंक अगेन जैसे नेगेटिव थॉट होता है तो नेगेटिव फूड है, तो आप हर नेगेटिव चीज से दूर रहे, चाहे फूड हो गया, चाहे क्लोथ हो गया, चाहे थॉट हो गया। तो अगर आप जितना, जैसे मैं सोशल मीडिया पे 2017 से नहीं हूँ ही नहीं, तो एक काइंड ऑफ पीस जो है मेरे दिमाग में है, क्योंकि आई एम नॉट कंपेयरिंग माय सेल्फ टू अदर्स। किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं हो सोशल मीडिया में, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, आप जाके व्हाट्सएप, नहीं, इंस्टा, फेसबुक वो तो हुई नहीं, वो तो वो तो मैं हुई नहीं, क्योंकि पीस ऑफ माइंड अगर आपको चाहिए तो वहां से हटना पड़ेगा। बिकॉज उधर क्या बंदे कहते हैं, दे आर वर्किंग वेरी हार्ड एंड देन फॉर 2 days ऑफ सेलिब्रेशन उन्होंने पूरी मेहनत की, एंड वो बेस्ट मोमेंट्स दे आर शेयरिंग विथ यू, एंड आप अपनी अच्छी लाइफ को उनके उस बेस्ट लाइफ से कंपेयर करके बुरा फील कर रहे हो। तो ऐसी चीज लेनी ही क्यों है जहां पे आप बुरा फील कर रहे हो? यार आप अच्छा चीज, आप ऐसी जगह जाओ ना आप गुड फीलिंग हो, ठीक है, फीलिंग गुड वाली, क्योंकि नेगेटिव थॉट वही होता है। आपको लगता है कि नेगेटिव सोचना है कि नेगेटिव थॉट नहीं होता है, आप नेगेटिव कंपैरिजन नेगेटिव थॉट है। तो मोटिवेशन तो मैं यही बोलूंगा कि आप जितना नेगेटिव चीजों से दूर रहो, चाहे नेगेटिव फूड हो गया, क्लोथिंग हो गई, थॉट हो गए, इनसे दूर रहे। सेकंड, थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज डालो, मस्त डालो। और हम लोग क्या करते हैं ना, रात को सोचते हैं पढ़ेंगे, मतलब रात भर पढ़ाई करेंगे, दिन में मतलब सोएंगे कम। तो मोटिवेटेड रहने का सबसे बेस्ट तरीका है 7 घंटे to 8 घंटे। मैं सोता हूँ, आज भी सोता हूँ, चाहे कितने भी एग्जाम दे रहा हूँ, 7 घंटे अगर मैं नहीं सोया तो मैं अगले दिन ढंग से नहीं पढ़ सकता, आई विल फील ग्रॉगी। तो मैं करता हूँ, सोना है 7। तो आप एक अच्छी स्लीप लें, एक अच्छी डाइट लें। अगर ये हो गया तो फिर आप मेंटल हेल्थ पे थोड़ा फोकस करें, थोड़ा सा मेडिटेशन करें, थोड़ा मेडिटेशन इन द सेंस कि कुछ मोटिवेटिंग सुने। क्योंकि कारण क्या है ना, हमें लगता है कि मैम कि वी आर द ओनली वन हु इज स्ट्रगलिंग हार्ड, बाकी सबकी तो लाइफ चिल चल रही है। ऐसा नहीं है। अगर आप हिस्ट्री देखते जाए तो वही आगे बढ़े हैं जिन्होंने स्ट्रगल किया है, नाम उन्हीं का रहा है। मैं वज्जियों में पता नहीं कितने राजा हैं, लेकिन सब जानते हैं सिर्फ महात्मा बुद्ध को, कारण दे ही लेफ्ट एंड सफर्ड इन जंगल्स। महावीर जैन को, सिर्फ महावीर जैन, उनसे पहले कितने मतलब राज महाराजा है, लेकिन जानते क्यों महावीर जैन? कारण ही सफर्ड। रामचंद्र जी ही सफर्ड, दैट्स व्हाई ही इज गॉड।
आई एम नॉट आस्किंग कि हम गॉड बन सकते हैं, वो तो बहुत अलग चीज है, लेकिन कुछ भी अचीव करने का उन्होंने एक रोड दिखा दिया कि आप जितना लड़ोगे, जितना तपोगे, जितना मेहनत करोगे, जितना फ्रस्ट्रेशन झेलोगे, और फ्रस्ट्रेशन झेलने में मतलब फ्रस्ट्रेशन से हार नहीं मान जाओगे। बोलते हैं ना कि जब आदमी, मांझी का एग्जाम्पल, करंट का एग्जाम्पल मांझी, उसने पहाड़ तो अगर वो फ्रस्ट्रेट होके भी, लेकिन ही इज वर्किंग हार्ड इनफ। आपको एक रहना है कि मतलब मेंटल, बोलते हैं इट्स एवरीथिंग इज मेंटल। अगर आपने सोच लिया कि आई हैव टू वर्क, तो फिर कुछ नहीं रोक सकता। लेकिन आपने सोच लिया कि अब मैं कर नहीं सकता, फिर तो सब, चाहे आपको हर दूसरे दिन कोई ना कोई बहाना मिल जाएगा कि यार नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं कहता हूँ दुख और निराशा में अंतर है। दुख होता है, बुरा लगता है, निराशा मतलब मेरे से हो नहीं सकता। ये फीलिंग कभी क्रीप इन नहीं होनी चाहिए, चाहे आपने पूरे दिन नहीं पढ़ाई की हो, सही में नहीं की हो, ठीक है, सो तो यही सोचना है, अ डे वेल स्पेंट। अगर नहीं पढ़ा तो आज रेस्ट ही ले लिया, रिचार्ज ही हो गया, कल पढ़ लूंगा। एक दिन और रेस्ट ले लिया, मान लो 2 दिन का रेस्ट हो गया, अब 5 दिन और अच्छे से पढ़ लूंगा। ये एक फीलिंग डाल के, बोलते ना सोते हो कभी नेगेटिव थॉट ना डालें, दिमाग में थॉट डालें, अ डे वेल स्पेंट। ये एक मोटो अगर बना ले आप, क्या डे वेल स्पेंट, 2 घंटे की पढ़ाई की, ठीक है कोई बात नहीं, हताश नहीं होना, निराश नहीं होना, डे वेल स्पेंट, ये एक मोटो बना ले आप। फिर अपने आप विथ टाइम, मोटिवेशन एक दिन में नहीं आता, विथ टाइम यही चीज आप 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीना, 3 महीना, साल, फिर अपने आप एक आप उस लीक पे चले जाओगे, आपने वो साइकिल ब्रेक कर दी डिप्रेशन वाली, फिर आप हमेशा कंटिन्यूस मोटिवेटेड रहेंगे। तो एक जगह फेल हुआ, मोटिवेशन, सेटबैक हुआ, कोई नहीं, क्योंकि नहीं आप बोलिए प्लीज, ये वाली कंप्लीट कीजिए अपनी बात। अरे अरे नहीं, जैसे कई बार क्या होता है कि अपन क्या करते हैं, जैसे एक एग्जाम आ गया तो अपन हाईली मोटिवेटेड हो जाएंगे, फुल चार्ज होकर पढ़ाई करेंगे, जैसे ही फेल हुए फिर हम इस साइकिल हो जाएंगे, यार वो क्वेश्चन कर दिया होता, वो क्वेश्चन में से अगर बच गया होता। दिस इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव थिंग वी डू, क्योंकि हम उस चीज में चल रहे हैं, बैक मतलब उस चीज में चल रहे हैं जहां पे हम जा ही सकते, टाइम आगे बढ़ चुका है, वी कांट गो बैक एंड चेंज। लेकिन वो हमारा मेंटल एनर्जी ड्रेन कर रहा है, वो हमारे आने वाले फ्यूचर को, विच हम जिसे हम सफल कर सकते थे, उसको बर्बाद कर रहा है। तो मैं यही बोलूंगा कि एग्जाम खराब हुआ, उस दिन के रो लो, गा लो, उस दिन दुख मना लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कल से भूल जाओ, क्योंकि अब बैक में नहीं जा सकते, आप पास में जा ही नहीं सकते। अगर आप जाने की हिम्मत रहती यार, तो आप फ्यूचर में जाके रिजल्ट ही देख लेते क्या होना है। तो आप ना फ्यूचर में जा सकते ना पास में जा सकते, यू कैन लिव इन द प्रेजेंट। और लिव इन द प्रेजेंट का मतलब क्या है, मेहनत। तो लोग इससे भागना चाहते हैं। पास एंड फ्यूचर बहुत प्लेजेंट है, क्योंकि फ्यूचर में आप प्लानिंग कर सकते हो, पास में आप प्रीवियस ग्लोरी पे जी सकते हो, प्रेजेंट में आपको हार्ड वर्क करना है, तो आप इससे बचना चाहते हो। तो आप लिव इन द प्रेजेंट का मतलब ये नहीं होता कि गो एंजॉय, लिव इन द प्रेजेंट का मतलब है कि जो मुझे अभी करना है, आई हैव टू डू, खाना है तो खाना है, अभी खाना है, खाने को प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है कि 2 बजे खा लूंगा, 3 बजे खा लूंगा, अभी खाने का टाइम है, खा लो, अभी नोट्स बना लो। दिस इज लिव इन द प्रेजेंट का मतलब। एंड तभी आप मोटिवेटेड रहेंगे, जितना प्रेजेंट करेंगे उतना मोटिवेटेड रहेंगे, जितना पास्ट एंड फ्यूचर में झूलेंगे डिमोटिवेट होंगे। मुझे तो बहुत मजा आया आपकी ये बात सुन के। जो आपने बताया सच में, मुझे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे एनर्जी ड्रिंक की कभी जरूरत होगी ना, मैंने आके ये देख लेनी है खुद ही आपकी वीडियो। आई एम श्योर द स्टूडेंट्स देयर are going to like it, and if the people who are watching this video आपको अच्छे लगे ना ये मोटिवेशन and you want more such lectures, आप कमेंट करो, फिर हम विकास जी को पकड़ेंगे मोटिवेशनल लेक्चर लाने के लिए चैनल पे। स्ट्रैटेजी नहीं, सिर्फ मोटिवेशन। इफ यस यू वांट तो मेंशन करना कमेंट्स में। देखते हैं। मुझे तो सच्ची इट वाज रियली गुड एंड it is wonderful because when it is coming from a person who has been in the competitive examination के process, कुछ समय हो गया, 4-5 साल हो गए है ना, तब वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आई हैव लॉस्ट द कनेक्शन, जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। Okay, so there was some technical error. Now we are back. तो विकास प्लीज टेल अस अबाउट योर इंटरव्यू। वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट आपकी पूरी स्ट्रैटेजी और मोटिवेशन के बारे में। यस सर मैम, फॉर मी द इंटरव्यू पार्ट इज द मोस्ट इजीएस्ट पार्ट। कारण है क्योंकि मैंने बोला कि आप मेंटल सेटिंग, इट इज एवरीथिंग इज मेंटल, बोला ना, अगर आपने यहाँ सोच लिया है तो इंटरव्यू इज ऑल अबाउट योर पर्सनालिटी। तो मुझे जनरली मतलब इतना डर लगता नहीं है, क्योंकि आप इस स्टेज पे आए हो, आपने प्री फेस किया, मेन फेस किया, इतने आगे आए हो, तो दे आर नॉट चेकिंग योर नॉलेज, दे आर जस्ट चेकिंग योर पर्सनालिटी। आर यू कॉन्फिडेंट इनफ, आप इस लेवल के हैं कि नहीं है, आप आने लायक हैं कि नहीं, आप एक ऑफिसर ग्रेड मटेरियल है कि नहीं है, दे आर जस्ट चेकिंग दैट। तो इंटरव्यू के लिए मैम मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि जितने ज्यादा से ज्यादा मॉक्स दे सके, जितने ज्यादा, क्योंकि फाइनल डे व्हाट दे आर आस्किंग यू डोंट नो, वो क्या पूछेंगे आपको आइडिया ही नहीं हो। तो मॉक देने से आपको क्या प्रिपरेशन, जैसे कि सबसे पहला मॉक मैंने एडुटेक के साथ ही दिया था,
एंड आपका पैनल बहुत ही अच्छा पैनल था, दोनों मतलब दोनों मेरे हिसाब से नाबार्ड की पैनलिस्ट एक्स एम्प्लॉय थे, और दोनों सर ने मेरे को अच्छे से मतलब फर्स्ट डे ग्रिल कर दिया, मतलब बहुत इजीली वे में उन्होंने ग्रिल किया, मतलब बहुत बेसिक क्वेश्चन थे एंड आई वाज नॉट इवन प्रिपेयर्ड फॉर दैट। एक बेसिक क्वेश्चन था कि मैं आईटी से हूँ, तो आईटी इनिशिएटिव नाबार्ड की पता चाहिए मुझे, सिंपल सी पता होनी चाहिए। एंड फिर सेकंड सर ने बोला हायरार्की, बोलते यार आप एक इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट एक हायरार्की पता होनी चाहिए। दीज आर काइंड ऑफ एग्जांपल्स जो आप प्रिपेयर करते हैं। तो मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक्स के अलावा मैम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है नाबार्ड की वेबसाइट एंड नाबार्ड का एनुअल रिपोर्ट, क्योंकि नाबार्ड में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इनसे बाहर नहीं आते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो दे आर वेरी सीनियर पीपल, वो आपकी कोर्स की किताबें नहीं पढ़ रहे हैं, वो यही चीजें पढ़ रहे हैं। दे आर रीडिंग न्यूज़पेपर्स, दे आर रीडिंग देयर एनुअल रिपोर्ट्स एंड दे हैव अ बेसिक आइडिया अबाउट देयर वेबसाइट्स, क्या चीज चल रही है। तो दे आर गोइंग टू आस्क यू प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। जैसे मेरे से इंटरव्यू पूछा था, मेरा तो पूरा एक ही लाइन पे चला गया था इंटरव्यू कि एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर। तो 3 क्वेश्चन आए, तीनों एग्रीकल्चर से आए, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि आई एम फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड, तो उन्होंने बोला, अब गलती ये मेरे से हो गई, आई सेड कि आई नो द चैलेंजेस एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ। बोलते अच्छा आपको सारे रूरल चैलेंजेस एंड प्रोस्पेक्ट पता है। तो ऐसा ना करें, आप इतने ओवर कॉन्फिडेंट होकर ना बोल दें, आप बोल सकते हैं कि आई हैव अ बेटर आइडिया। मैंने बोला कि आई नो ऑल चैलेंजेस एंड प्रोस्पेक्ट्स। मतलब लाइन बहुत छोटी छोटी लाइनें होती हैं, लेकिन वो उसको पर्सनल ले, कई बार ले लेते हैं कि आप मतलब इतने यार अभी उम्र ही कुछ नहीं है एंड यू आर वेरी। तो उन्होंने पूछा अच्छा बताइए कि क्या चैलेंजेस है, तो मैंने बता दिया, वैसे आते थे। तो ये मैं बोलूंगा कि लीड, आप जो लीड देते हैं थ्रेड उन्हीं से बनती है। आपने एक पॉइंट, जैसे मैंने रूरल बैकग्राउंड डाला एंड मैंने बताया कि मुझे पता है, तो उन्होंने वही पूछा। तो आप ऐसी लीड दे जिसमें आप कॉन्फिडेंट है, आप जिस पे ज्यादा प्रिपेयर्ड है, आप वो लीड प्रोडक्ट दें, क्योंकि दे विल आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम, और वो तीनों जो पैनल है वो सेटिस्फाई करता है अपने आप को कि अच्छा यहाँ बंदा सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो मैं तो वही मैम, यही मेन चीज है, ये मॉक्स ले, मॉक से प्रिपेयर हो एंड सेकंड मॉक से पहले जो आपने पहले मॉक में गलती की है वो गलती रिपीट ना करें। अगर ये होता है ना कि आप वही मॉक में एक ही गलती बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो इट इज वेरी चैलेंजिंग। बायोडेटा से आप थॉरो हो, थॉरो इन द सेंस कि आपको इन एंड आउट सब पता होना चाहिए, उस पर कुछ गलती नहीं हो सकती, क्योंकि आप अपने बारे में अगर आप ढंग से नहीं बता सकते तो आप बाकी चीज क्या बता पाओगे। तो आपको बायोडेटा मस्ट है। बायोडेटा के बाद इनकी वेबसाइट एंड एनुअल रिपोर्ट्स, उसके अलावा आप जो मॉक से इनपुट्स मिलते जा रहे हैं, करंट अफेयर से आप अपडेटेड रहे एंड मॉक्स देते रहे। ठीक है, तो ये क्रूशियल चीजें हैं जो इंटरव्यू के प्रिपरेशन में काम आती हैं। इसमें एक चीज बस मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ, दैट as you said about your own application form, तो उसपे when you filled the form, did you make any list of questions, या उसपे कैसे तैयार किया basically? Again, I didn't get the question. For your detailed application form, जो आपका बायोडेटा है, उसपे when you want to prepare, तो do you make your own list of questions अपने डाफ रख के सामने, या फिर only मॉक्स पे हम कर सकते हैं डिपेंड? नहीं, आपको अपने से तो बेसिक, जैसे कि why you left your job, ठीक है, why you were preparing for UPSC, why now you are coming to NABARD, why NABARD, सबसे बेसिक क्वेश्चन था why NABARD। ये सबसे ही पूछा था मेरे जानते में, एवरीबडी, मतलब they have asked this question from everybody कि why NABARD, and everybody has a different answer। आप इसको एक दूसरे का रट के नहीं जा सकते। जैसे मेरा, क्योंकि आप कितनी भी कोशिश कर लो, एट द एंड ऑफ डे वो मुझे आ ही जाएगा, क्योंकि this has been imbibed in your personality, why do you want to join। अब मेरा जैसे था, मेरा pragmatism था कि यूपीएससी में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मेंस में अटका पड़ा हूँ एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, एंड आई नीड अ मेंटल पीस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि उम्र भी बढ़ रही है, शादी भी करनी है, ठीक है, एक लाइफ भी जीनी है। तो 28-29 हो चुका हूँ मैं, तो ये सीन था कि आपको नाउ यू नीड अ गुड जॉब, तो ये मन में आ ही जाता है। एंड नाबार्ड इज अ वेरी प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन। ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये सबके इंडिविजुअल पॉइंट्स हो सकते हैं। तो ये आपको प्रिपेयर, ये खुद ही सेल्फ क्वेश्चन में बोला, जैसे कि व्हाई नाबार्ड, आपका फिर क्यों जॉब छोड़ा, क्यों जॉब पकड़ा, एंड क्यों यूपीएससी, व्हाई नॉट कॉर्पोरेट, ठीक है। आप कई बार बच्चे बोलते हैं जैसे देश की सेवा कॉर्पोरेट में तो कर सकते हो, यू आर पेइंग टैक्सेस, गवर्नमेंट को अच्छे से टैक्स इवेड ना करें, दैट्स आल्सो अ सर्विस टू द नेशन। तो ये है चीजें, तो ये आप सेल्फ प्रिपेयर करें। एंड मॉक्स में आपको अलग से क्वेश्चन मिलते हैं मॉक्स में, क्योंकि जिसके लिए आप प्रिपेयर नहीं हो। मॉक्स क्या करता है ना, बेसिकली एट द एंड ऑफ डे वहां पे वो क्वेश्चन पूछने वाले हैं जिसके लिए आप प्रिपेयर नहीं हो। तो इस रैंडमनेस के लिए मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप खुद जो प्रिपेयर कर रहे हो आपको तो पता है, आप 10 बंदों से वही क्वेश्चन पूछाओगे, लेकिन रैंडमनेस के लिए कैसे प्रिपेयर करोगे, क्योंकि यस मैम, तो रैंडमनेस के लिए रेडी रहना है, क्योंकि असली में गेम वही होता है।
रैंडमनेस में आप केओटिक ना हो जाओ, एकदम कांपने ना लगो, एकदम डरने लगो, यार ये क्या पूछ दिया। आप इससे डील नहीं आता, हंस के स्माइल करो, नहीं आता सॉरी, जैसे मेरे से क्वेश्चन नहीं आया, बहुत बेसिक क्वेश्चन उन्होंने पूछा, बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा, एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, एकदम न्यू स्कीम थी, उन्होंने पूछा कि व्हाट इज दिस, मैं कहा सॉरी सर आई हैव नो आइडिया, बोलते बेटा अभी रिलीज हुई है, इट इज वेरी न्यूज, वेरी मच इन न्यूज, एंड तुम्हें तो पता होना चाहिए, यू आर यूपीएससी स्टूडेंट। सर अगेन सॉरी बट नहीं आता। तो अगर आप यहाँ पे डर के बोल रहे हो अब तो मैं इससे मेरा इंटरव्यू खत्म हो, आप स्माइल रखो, क्योंकि आपको हर चीज नहीं आ सकती, बहुत कुछ है, आप सब कुछ नहीं प्रिपेयर कर सकते। तो इस रैंडमनेस के लिए मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा ये एम्फेसिस रहेगा। तो प्रिपेयर योरसेल्फ वेल, अच्छे से वेबसाइट देखो, अपना फॉर्म देखो खुद का जो भरा है, उस पे क्वेश्चंस, टेक मॉक्स, देन उसके बाद बी कॉन्फिडेंट, अच्छे से जाके यू हैव टू प्रेजेंट योरसेल्फ। तो दैट इज हिज मंत्र, राइट। कॉन्फिडेंस में तो मैम सिंपल सी बात है, उस दिन तो आप इतना कॉन्फिडेंट होके जाए कि यार दे आर गोइंग टू सेलेक्ट यू, कारण है बुलाया है कि आप आगे आए हो, तो यहाँ आके डरना कोई मतलब नहीं बनता। अगर आप डर रहे हो तो यार फिर आप अपना ही नुकसान कर रहे हो, क्योंकि बोला ना एक नेगेटिव थॉट गया अंदर तो सब नेगेटिव होता है, तो थॉट लाना ही क्यों, व्हाई नॉट मी, ये वाली फीलिंग, व्हाई नॉट मी, मेरे में कमी क्या है, ये फीलिंग आएगी, गारंटी अच्छा होगा। एंड मॉक्स में तो नाबार्ड इंटरव्यू में बहुत अच्छे नंबर दे रहा है, 48 नंबर, अभी सॉरी अभी आया नहीं है मतलब, लेकिन आरटीआई में मार्क्स रिलीज में 48 नंबर आउट ऑफ 50। सो क्या है, नॉलेज नहीं है वो, सिर्फ वो पर्सनालिटी है, वो उनकी पॉजिटिव थॉट्स हैं। यस मैम। wonderful tips for even interview guys. तो the deserving candidates who follow the right strategy, अच्छे से effort करते हैं, will reach the interview stage and will definitely get selected. तो आप तैयार हो जाइए तैयारी के लिए, right? तो that was a wonderful conversation because बहुत सारी important अच्छी बातें आपने बताई, बहुत ही practical examples के साथ में। तो thank you so much for taking out time from your busy schedule. आपने निकाला है, कुछ ही दिनों में बस ज्वाइनिंग है आपकी, तो कंग्रेचुलेशंस टू यू फ्रॉम आवर टीम एंड ऑल आवर स्टूडेंट्स आउट देयर। थैंक्स अ लॉट। तो आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर लवली जॉब। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ओके।